چینی مافیا پر بھی قانون کا شکنجہ ٹائٹ ہو گیا۔ انتظامیہ کی خیبر پختونخوا اور پنجاب بھر میں کارروائیاں زور پکڑ گئیں۔ ملک بھر میں چینی مافیا کی شامت آ گئی۔ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے قانون کے ہتھے چڑھ گئے۔ پشاور میں چینی کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تگڑا ایکشن۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کی چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ آ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 8,445 میٹرک ٹن ذخیرہ شدہ چینی برآمد کی گئی۔ ٹانک میں چینی مافیا کی شامت آ گئی۔ کڑی حیدر روڈ کے قریب گودام پر پولیس اور محکمہ فوڈ نے چھاپہ مار کارروائی کی۔ 50 کلو کی 540 چینی کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ چینی قبضے میں لے کر گودام سیل کر دیا۔ جھنگ میں شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 65,000 کلو چینی برآمد کر لی۔ غیر قانونی ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر کے اسٹور کو سیل کر دیا گیا۔ کمالیہ میں ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے چینی ذخیرہ کرنے پر تاجر کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پاک پتن سے 1,750 بوریاں برآمد کر کے 8 مقدمہ درج کر لیے گئے۔ ملک بھر میں بجلی چوروں سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ کمالیہ میں وابڈا ٹیم نے چھاپہ مار کر ایکس بجلی چوروں کو پکڑ لیا، جن پر 23 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ کروڑ لالی سندھ میں بھی وابڈا ٹیمیں بجلی چوروں کے خلاف متحرک ہیں۔ ایک بجلی چور کو پولیس نے دھر لیا، جبکہ باقیوں کے میٹر اتار کر مقدمات درج کر لیے گئے۔ وابڈا حکام کا کہنا تھا کہ بجلی چوری میں ملوث کسی بھی شخص کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جیکب آباد میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے دوران 900 سے زائد کنڈا کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ جہلم میں بھی 2 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ سکھر میں بھی بجلی چوری اور بقایا جات کے خلاف سیپکو افسران نے کمر کس لی ہے۔ اے سی والے کمرے چھوڑ کر بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ حاجی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد کنڈا سسٹم کے خاتمے اور بقایا جات کے خلاف سیپکو افسران اور ملازمین نے بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا، لیکن اس آپریشن کی کامیابی اس صورت میں ہوگی بجلی چوری کے خلاف آپریشن بلا تفریق ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے آپریشن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ غریب عوام کے کنڈے کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن امیروں اور طاقتوروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ بہت سارے کنڈے جو ہم نے کاٹے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے روٹی سیل کی، دادو کی، وکر کی سواری، وہ ہمارے ساتھ چیک کر رہی ہے۔ ایک کنڈیشن ہم چیک کر رہے ہیں۔ بندر روڈ فیڈر جو ہے اس کی کامبنگ ہو رہی ہے، ایک نمبر ہم چیک کر رہے ہیں، ایک میٹر جو ہے وہ چیک ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی فل کامبنگ ہوگی۔ وہ جعلی کنیکشن، کنڈا سسٹم، اس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ جب تک بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنڈا سسٹم، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عارضی طور پر یہ ہٹائیں گے اور اس کے بعد پھر کنڈے لگ جائیں گے۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ سیپکو ان افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی محکمہ جاتی کارروائی کی جائے جو بجلی چوری کروانے میں ملوث ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ سناوا میں مقامی شوگر ملز کی جانب سے سستی چینی کے سٹالز لگا دیے گئے۔ گھریلو صارفین کو چینی 140 روپے فی کلو میں بآسانی مل رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں منیر حسین۔ چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچنے کے بعد پنجاب گورنمنٹ ان ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر مقامی شوگر ملز نے سناوا سمیت کوٹدو، مظفر گڑھ اور ملتان میں سستی چینی کے سٹال قائم کر دیے، جہاں پر گھریلو صارفین کو 140 روپے فی کلو چینی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایسا ہے کہ موجودہ جو معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور محسن نقوی صاحب وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے، ان کی ہدایت، اور اسپیشلی میاں فیصل صاحب جو ہمارے اونر ہیں، ان کی ہدایت پر ہم نے ابھی سٹارٹ کیے ہیں 5 سٹال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستی چینی کے سٹال بڑھائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری سستی چینی حاصل کر سکیں، جبکہ مل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سٹالز کی تعداد بھی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ سیالکوٹ میں زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ دکاندار سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر سبزیاں فروخت کرنے لگے۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کی اونچی اڑان کے باعث سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سیالکوٹ میں سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث گھریلو خواتین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سبزی بھی 200، 250، 300 روپے کلو ہے کہ انسان گوشت تو دور کی بات ہے، سبزی بھی خرید کے کھا نہیں سکتا۔ اوپن مارکیٹ میں دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ پاس ہونے کے باوجود اپنی من مرضی پر سبزی فروخت کر رہے ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے پیچھے سے سبزیاں مہنگی مل رہی ہیں، سرکاری ریٹ پر کیسے فروخت کریں۔ جو یہاں پہ انہوں نے جو ریٹ لسٹ لگائی ہے نا، اس کے مطابق بالکل کوئی چیز فروخت نہیں ہو رہی۔
रेट लिस्ट से ज़्यादा है, तो जो सैलरीड पर्सन है, तनख्वाहदार तबका, वो तो बिल्कुल पिस के रह गया। सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतें कम की जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम सूखा सांस ले सके। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में भी महंगाई अरूज पर पहुंच गई। सब्जियां और फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके। तफसीलात मलिक शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। यूं तो हर शय के दाम को पर लगे हुए हैं, मगर अब नौबत इस हद तक पहुंच गई है कि गरीब आदमी के लिए सब्जियां तक खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जी हाँ, जब हम मंडी में जाते हैं सौदा लेने तो वहाँ पे हमें सौदा बहुत महंगा मिलता है। यहाँ पे रेट लिस्ट हमें दी जाती है, लेकिन उसमें जो रेट लिखा हुआ होता है उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं होता। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि वो जाएँ, कमर मुशानी मंडी में जाएं, वहाँ पे रेट लिस्ट चेक करें। शहरी तो शहरी, दुकानदार भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। सब्जी और फ्रूट दुकानदारों का कहना है कि मंडी में सब्जी फ्रूट्स के भाव बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मजबूरन अशिया महंगी फरोख्त करना पड़ती हैं। शहरी हों या दुकानदार, सब ने फ्रूट्स के जायद निर्ख का कसूरवार इंतजामिया को करार देते हुए कहा कि मंडी में लाइव स्टॉक डॉक्टरों और दीगर महकमा जात के अफसरान को नीलामी की निगरानी करने भेजा जाता है, जिन्हें इस बारे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बाइख्तियार ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अगर सब्जी मंडी पर अशिया की नीलामी अपनी मौजूदगी में खुद करवाएं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में वाज़े कमी आएगी, जिसका बराह रास्त फायदा आम आदमी को होगा। कैमरा टीम के हमरा मलिक शाहिद खेल, सच न्यूज, ईसा खेल। फूलनगर में होशरुबा महंगाई ने आवाम को बेरोजगार कर दिया। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। मजीद जानते हैं मलिक अब्बास की इस रिपोर्ट में। फूलनगर में तमीराती कामों की कमी की वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिससे डेली बेसिस पर काम करने वाले मिस्त्री मजदूर और दिहाड़ीदार तबका के लोग परेशानी का शिकार हो गए। बाहर का सर्कट भी नहीं चलता, घर का भी नहीं चलता। दसो आटा भी महंगा, घ्यो भी महंगा। बच्चे घर जड़े ने वो भुखे तरसते पे ने। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ। मजदूरों का कहना था कि तमीराती कामों की कमी की वजह से हमें काम बहुत कम मिलता है। हफ्ते में 3-4 दिहाड़ियां बड़ी मुश्किल से लगती हैं, जिससे हमारे घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत को चाहिए कि हमारे मजदूर तबका लोगों पर भी तवज्जो दी जाए, महंगाई को कम करके तमीराती कामों को बहाल कराया जाए ताकि रोजगार के मौके पैदा हो सकें और मुल्क की तमीर तरक्की में भी बेहतरी आ सके। कैमरा टीम के हमरा मलिक अब्बास, सच न्यूज। भावलनगर में खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। काश्तकार तबके को सरकारी रेट पर खाद का वसूल मुमकिन न रहा। किसानों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे बहावलनगर से राजा कोकब इफ्तिखार। बहावलनगर में इंतजामिया और खाद डीलर के गठजोड़ की वजह से जिला भर में यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी सारी फसल है सारी डूब गई, एक दरिया आ गया, सारी फसल सी पट्टे सी या जी फसल सारी तबाह हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए सारना को रियायत करे, कोई तावन करे। यूरिया खाद का सरकारी रेट 3200 रुपए है, जबकि ब्लैक में 4600 रुपए में फरोख्त की जा रही है। ज़िला इंतजामिया की नाकस पॉलिसियों के बायस काश्तकार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। बासर खाद डीलर माफिया का महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती और शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यूरिया का रेट 3300 इत दे रहे 4600 जिमें उन्होंने रक्शे होंगे भरे भराए सारे गोदाम भरे पे ने। गवर्नमेंट तक की अपील है छोटे जिमीदारों के स्टाक पकड़े जावे और छोटे जिमीदारों खाद सही रेट ते मुहैया की जाए। पाकिस्तान की मैशियत का दारोमदार ज़राअत पर है, मगर हुकूमती पॉलिसी साज इदारे ज़राअत के शोबे को मुसलसल नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावलनगर। चीचा वतनी में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से किसान परेशान हैं। इसी हवाले से महर अजहर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से चीचे वतनी में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी से गंदम की फसल भी मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तहसील चीचे वतनी में यूरिया खाद नायाब हो गई। हुकूमत की जानिब से यूरिया खाद का सरकारी रेट 3400 रुपए इजाफे, जबकि मार्केट में किसानों को यूरिया खाद 4500 में भी दस्तयाब नहीं, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। किसानों का कहना है कि गंदम की फसल इस वक्त बढ़ोतरी के अमल में है और यूरिया खाद की जरूरत है,
मगर यूरिया खाद मिल नहीं रही, जिसके बहस गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। क्योंकि खाद का बहरान तकरीबन आल पाकिस्तान में चल रहा है, जैसे सारे पाकिस्तान में चल रहा है वैसे ही चीचा वतनी में खाद का बहरान है। ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਖਾਦ ਤੱਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਯੂਰੀਆ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ 3200 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4500 ਤੇ ਲੱਭਦੀ। किसानों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की फराहमी को आसानी के साथ यकीनी बनाया जाए ताकि बर वक्त फसल को खाद डालकर बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मारज़र, चीचा वतनी। पाकवतन शरीफ के सैलाब ज़दगान घरों को तो आ गए, लेकिन इनके घरों में कुछ बाकी ना रहा। फसलें डूब गईं, किधर जाएं, कहीं उम्मीद भी तो नज़र नहीं आ रही। मज़ीद अहवाल जानते हैं नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकवतन शरीफ में सैलाब ज़दगान की वापसी तो अपने अपने घरों में हो गई है, लेकिन पहले ही अपने घर और फसलों की बर्बादी की वजह से परेशान थे सैलाब ज़दगान, लेकिन अब इनके पास खाने पीने की अशिया भी नहीं है। इस हवाले से इन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना है। कोई चीज नहीं जी, खावन पीवन घर गिर गए न, बड़े हालात मंदे न, माल भुखा है, बच्चे भूखे न जी, साढ़े घर गिर गए न, बहुत नुकसान हो गया, माल भुखे खड़े हैं न, कोई मेहरबानी की जावे साढ़े वास्ते। कान डेग पैन जी, हालात बड़े खराब हैं, जानवर भुखे हैं, कोई खान दी चीज को नहीं, ना जानवरां दी ना साडी है। हुकूमती और इंतजामी की इमदाद तो दूर की बात, सैलाबी इलाकों का दौरा भी नहीं किया, इन गरीबों की दाद रसी नहीं की। चंद तंजीमें जिनमें पीर काशिफ अली शाह फाउंडेशन लाहौर और ERC फाउंडेशन गुजरावाला के अलावा किसी को ये सैलाब ज़दगान नजर ही नहीं आए, ना ही सैलाब ज़दगान को अब इनसे कोई उम्मीद है। सैलाब में डूबी अवाम का मजीद कहना है कि जिनके लिए हम लाइनों में खड़े होकर वोट देते हैं और ठंडे ऐवानों में पहुंचाते हैं, वो तो आज हमारे वाली वारिस नहीं है। मजहबी जमातें जो कि असली हमारी वाली वारिस हैं, वो मैदान में आ गई हैं, आज हमें सहारा दे रही हैं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकवतन। नज़ीर अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नूरपुर थल का फैमिली पार्क ज़बूहाली का शिकार है। पार्क में लगे झूले और लाइट्स भी टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बाद शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद चौधरी। नूरपुर थल तहसील भर के लिए बनाया गया इकलौता फैमिली पार्क खस्ता हाली का शिकार है, जिसके अंदर ग्रीन ग्रास फूल पौधे का नाम निशान नहीं रहा। पार्क के अंदर चार दीवारी, बच्चों के झूले और लाइट्स टूट फूट का शिकार हैं। सारे नूरपुर थल दा पार्क है जी, ये खस्ता हाली का शिकार है, इंतजामिया की कोई तवज्जो को नहीं जी। हमारे नूरपुर थल का वैद पार्क है जी, यहाँ पर झूले नहीं हैं, यहाँ पर लाइटें नहीं हैं, यहाँ पर पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। नूरपुर थल के शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर साद बिन खालिद से मुतालबा किया है कि पार्क की हालत पर तवज्जो दें और आवाम के लिए इसे बहाल करें। नूरपुर थल तहसील भर के लिए बनाया गया वाहिद इकलौता फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो और नाअहली की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज़, नूरपुर थल। उधर नारंग मंडी में पानी नायाब हो गया। सरकारी पानी की मुअस्सर ख़राब होना मामूल बन गया है। शहरी पानी के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मुअज़्ज़म नवाज। नारंग मंडी में आए रोज सरकारी पानी की मोटर ख़राब होना मामूल बन गया है। कई दिन तक पानी की अदम फराहमी से शहरियों का मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। 5 रोज से सरकारी पानी की मोटर ख़राब है, जो ताहाल ठीक नहीं हो सकी। शहरियों को पानी के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पड़ता है। सरकारी पानी 6 दिन हो गया, पानी नहीं है, पानी बंद है, मोटर खराब हैगी जी। जो दिल करता महीने बाद 15 दिन बाद मोटर खराब हो जाती हैगी, सानू हफ्ता दलील होना पैंदा। पानी नहीं सरकारी आंदा है, मैं किसी चौथे महल्ले में पानी भरना है। आए रोज़ पानी की मोटर ख़राब हो जाती है, जिससे कई दिन तक पानी में असर नहीं होता। शहरियों ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ और 5 रोज़ से ख़राब सरकारी पानी की मोटर को ठीक करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मुअज़्ज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। महकमा शहरात की गफलत और लापरवाही टंडो बागों की सड़कें गुज़श्ता 17 साल से खस्ता हाली का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के सबब मुसाफिरों के लिए सफ़र करना इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल राई। तहसील टंडबागों के सैलाब ज़दा इलाकों की सड़कों और पुलों की बहाली का काम ना हो सका। 2022 में दौरान सैलाब अरबों रुपये सैलाब ज़दा इलाकों की सड़कों और पुलों की बहाली के लिए मंजूर किए गए। टंडबागों से पंगरियों और पंगरियों से समन सरकार और झुडो जाने वाली सड़कों की मरम्मत का काम ना हो सका। ये रोड जो है पिछले 15 सालों से नहीं बना। गवर्नमेंट के कागजों में बात सुनने में आई है कि ये रोड 3 मरतबा गवर्नमेंट के कागजों में बन चुका है। अभी बहुत सा वक्त गुजरने के बावजूद हुक्मरान जो है उन्होंने हमें ये रोड नहीं बना के दिया।
और हम इस इलाके वाले लोग बीमारी शिमारी में हम लोग यहाँ से अपने मरीज लेकर भी नहीं जा सकते। शहरियों ने महकमा हाईवे जिले इंतजामिया हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द सैलाब ज़दा इलाकों की सड़कों और खस्ता हाल पुलों की बहाली का काम किया जाए, जिससे शहरी बेहतर से बेहतर सफ़र कर सकें और मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा सुहेल राई, सच न्यूज़। कसोवाल की राबता सड़कें तबाहाली का शिकार हो गई। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई। राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट देखिए। कसोवाल शहर और नेशनल हाईवे को मिलाने वाला मसरूफ तरीन छोटे रेलवे फाटक का रोड पिछले कई साल से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों और अहले इलाका समेत स्कूल के तुलबा को भी आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रोड जड़ा कई सालों तो टूट फूट का शिकार है। साडी वज़ीर आज़म वज़ीर आला से अपील है कि इन्हू जल्द जल्द तमीर किया जाए। टूट फूट की वजह से कई बार हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमतें भी बदली लेकिन इस रोड की हालत ना बदल सकी। उन्होंने वजीर आजम से अपील की है कि इस रोड को जल्द बनाया जाए। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफ़ा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। दायरा दीन पनाह में रेडी बानों ने सड़कों के इतराफ डेरे जमा लिए। ट्रैफिक मसाइल और हादसात में इजाफा होने लगा। ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया। शहरी परेशान है, इंतजामिया लापता हो गई है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ बलोच। दायरा दीन पनाह इंतजामिया की नाअहली या मिली भगत कब्जा माफिया ने मेन रोड के दोनों अतराफ पंजे गाड़ लिए। मेन रोड के किनारों पर रेडी बानों ने अपने डेरे जमा लिए, जबकि रिक्शे और कारों के गैर कानूनी स्टैंड भी कायम हो चुके हैं। सरकारी स्कूल की छुट्टी के वक्त तुलबा और तलबात का रोड से गुजरना भी मुहाल हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया शहर भर में तजावजात की रोकथाम के लिए कोई इकदाम न कर सकी, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। ये साडा दायरे दीन पनाह दा अड्डा है। ये अड्डे दे उत्ते रक्शे दी भर मार है। म्यूनसिपल इंतजामिया अंदरून बाजार और बैरून बाजार में कैम तजावजात खत्म करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। कहरोड पक्का समेत तहसील भर में होने वाले तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो गए। बर वक्त सड़कों की तामीर मुकम्मल न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से समीर राव की रिपोर्ट देखिए। केड़ोपका शहर के मुतअद्दा रोड के कंस्ट्रक्शन का काम तातील का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर वक्त रोड की कंस्ट्रक्शन न होने की वजह से आए रोज हादसा मकबूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना था कि रोड पर बड़े बड़े पत्थरों की वजह से सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रोड जो है तकरीबन 3 माह से हो गया है, ये खाली पड़ा है और हमें जो मिट्टी घट्टा पड़ता है सारे हलक में जाता है, बीमारियाँ पैदा होती है इससे, और इसकी सुनवाई नहीं हो रही। पर ना कोई बना रहा अभी तक, कोई भी नहीं आता। ना बल्दियाँ पानी मारती है, हम पानी मार मार के थक जाते हैं और मिट्टी गट्टा इतना उठता है कि हमारा आंखें भी खराब हो रही हैं इससे। केरोडपका शहर के रोड बर वक्त न बनने की वजह से हुकूमत को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहरों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन रोडों की मुरम्मत करवाई जाए और होने वाले तरक्याती काम को मुकम्मल फिलफौर मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, केरोडपका। महकमा शाहरात की गफलत और लापरवाही ओट शरीफ में सड़कें इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीन। कोट शरीफ के वहद मैप को सब डिवीजन रोड इंतहाई खस्ताल का शिकार है। चंद मीटर रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रोड की मखदूश हालत से दूर दराज से आए शहरी समेत दफातर में जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा वापडा की रोड से गुजरने से इंसान दिल गुर्दे की मर्ज में मुब्तला होने लगे और इसके अलावा गाड़ियों का भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। दफातर में आए सैलिन समेत दफातर में आने वाले मुलाजमीन समेत शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द तमीर कराया जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ और शरीफ। तरनौल में मोटरवे पुलिस बीट 4 के ज़ेरे एहतमाम रोड सेफ्टी मुहिम सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज शेर अफजल। तरनौल में मोटरवे पुलिस बीट 4 के ज़ेरे तमाम रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही मुहिम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टर मालकान, ड्राइवरों और मुसाफरों ने शिरकत की। सेमिनार में मोटरवे पुलिस के पेट्रोलिंग अफीसर इस्लाम दानिश, ऑपरेशनल अफीसर असद मासूद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का मकसद दौरान
सफ़र गाड़ी में हादसे से महफूज रखने वाले किन आलात का होना ज़रूरी है और हादसे की सूरत में उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह आगाही का ना होना और गफलत और लापरवाही से ड्राइवरों का गाड़ी चलाना। ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, जिससे रोड हादसात में कमी वाक़या होगी। और हमारे आईजी साहब की तरफ से ये हमें हिदायत थी कि इस तरह PSV जो गाड़ियाँ हैं उसके टर्मिनल पे जाके हम उनको ब्रीफ कर दे ताकि हम कीमती जानों को बचा सकें। आखिर में मोटरवे पुलिस के अफसरान की तरफ से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ड्राइवरों में गिफ्ट और शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। मुखय्यर हजरात मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए पेश लोअर दीर में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। अलखिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के जानिब से यतीम बच्चों के माओ में सिलाई मशीन तकसीम की गई। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तारिक खान, अलखिदमत फाउंडेशन के मुकामी ज़िम्मेदारान और खवातीन ने शिरकत की। इस मौका पर अलखिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के जानिब से यतीम बच्चों के वालिदैनों में 10 सादात सिलाई मशीन तकसीम की गई। तकरीब से मेहमान खसूसी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तारिक खान, जुमात इस्लामी तहसील तेमरगरा के अमीर मलक शेर बहादुर खान, नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन मजीदुल्लाह खान और तेमरगरा सर्कल के सदर हाजी फहीमुद्दीन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, यतीम बच्चों के वालिदैनों को सिलाई मशीन की फरहमी से ख्वातीन कपड़े कढ़ाई सिलाई करके अपने घर के अखराजात खुद बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगी। फाउंडेशन का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें सिलाई मशीन फराहम की, जिससे हम सिलाई का काम शुरू करेंगे। हमें अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से सिलाई मशीन मिली है, जिससे घर में बैठकर घर का चूल्हा चलाएंगे। उन्होंने कहा कि खिदमत फाउंडेशन कुदरती आफात, ज़लज़लों, सैलाब, यतीम बच्चों की कपालत, तालीम और सेहत और सहूलत फराहम के साथ साथ दुख इंसानियत की खिदमत में पेश है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से अवामी शऊर उजागर करने और कम्यूनिटी सतह पर इंसानी रवैयों में तब्दीली के गर्ज से गिलगित में पब्लिक मोबिलाइजेशन स्टंट का इनकाद किया गया। इसी हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से अवामी शऊर उजागर करने और कम्यूनिटी सतह पर SDGs के हवाले से इंसानी रवैयों में तब्दीली के गर्ज से गिलगित में पब्लिक मोबिलाइजेशन स्टंट का इनकाद किया ताकि तरजीही बुनियादों पर पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सके। हम इधर सेशन हमने तरतीब दिया था कि मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से हम बात करें, तो इसमें एजुकेशन था, अमन के हवाले से था, तो हमने मुख्तलिफ इदारों से अरकान इधर आए थे बात करने के लिए कि अमन के हवाले से हम अमन कैसे कायम करें। आवाज़ फाउंडेशन पेन और GBRSP के जो टाउन से SDGs का आज जो सेशन हुआ वो बहुत अच्छा रहा और आज के दिन पूरे पाकिस्तान में SDGs के हवाले से जो भी इनकी एनिवर्सरी मनाई गई, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में। पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से मुनक़िद तकरीब में ख़वातीन की नुमाइंदा तंजीमात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफ़ियों और तरक्याती इदारों के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिन्होंने हाथों में SDG से मुतालिक प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने मौजूदा मुल्की इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में क़याम अमन, सिनफ़ी मसावत, वुमेन एम्पावरमेंट और समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक SDGs तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पायदार तरक्की के लिए तमाम अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाने में अपना मौसर किरदार अदा करेगी। पायदार तरक्की के लिए माशरे के तमाम स्टेक होल्डर जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हो सकते, लिहाजा सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। कबीरवाला में कपास की चुनाई के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही फराहम की गई ताकि कपास के काश्तकार कपास मंडियों तक पहुँचाकर बेहतरीन ज़र मुबादला हासिल कर सकें। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में कपास की चुनाई का मरहला तेजी से जारी है। ऐसे में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास चुनने वाली खवातीन को कपास के खेतों में अमली तरबियत दी गई ताकि वो आलूदगी से पाक कपास मंडियों तक पहुंचा सकें। कपास को गीली जगह पर हरगज न रखें। काश्तकारों को ये भी कहा जा रहा है कि चुनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए। फील्ड सुपरवाइजर की हिदायत पर अमल करके आलूदगी से पाक साफ सुथरी कपास मंडियों तक पहुंचने से न सिर्फ काश्तकार को अच्छे दाम मिलेंगे बल्कि मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। इसलिए जरूरी है कि कपास की पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की हिदायत पर चुनाई करने वाली खवातीन को मुकम्मल तौर पर आगाह करने का अमली मुजाहरा
करके चुनाई के दौरान की गई हिदायत पर अमल कराया जा सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। सिंध के शहर खैरपुर नाथन शाह में चावल के खेत पर नामालूम अमराज ने हमला कर दिया। चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए रजब अली की। खैरपुर नाथन शाह चावल की खेती को नामालूम अमराज का हमला, चावल की खेती को शदीद नुकसान का खदशा, किसानों में शदीद तशवीश की लहर, महकमा ज़राअत खामोश। खैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ देहात गोजू, मीरसन, आडो खान कारी समेत तहसील भर में चावल की तैयार फसल पर नामालूम अमराज के बायस खेती को शदीद नुकसान का खदशा बरकरार। ये बड़ा जीत लगा, इसी वजह से बीमार हो गए, फसल को दवा सही नहीं मिल रहा है, बहुत खर्चे हैं, हमारे गरीब लोग हैं। हमारे तैयार शुदा चावल की खेती को नामालूम अमराज ने जकड़ लिया है, जिसके बायस हजारों एकड़ पर मुश्तमिल हमारी चावल की खेती तबाह होने का खदशा है, जबकि महकमा ज़राअत ने अब तक कोई भी इक़दाम नहीं उठाए। महंगाई के इस दौर में हमने अपने चावल की फसल पर बड़े अखराजात लगाए हैं। अगर हमारा फसल तबाह हो गया तो हम किसान फाका कशी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। चावल की खेती को लगे नामालूम अमराज के बायस यहाँ के किसान शदीद जो है वो मायूसी का शिकार है। किसानों का महकमा ज़राअत से ये मुतालबा है कि फिलहाल फौरस पर नोटिस लेकर इस जो अमराज को खत्म करके किसानों की बेचैनी दूर की जाए। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथन शाह। कमालिया का खद्दर मयारी और पायदार कपड़ा है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दिलकश और पुख्ता रंगों पर मुश्तमिल खद्दर की खास बात यह है कि इसे हर खासो आम खरीद सकता है। असद राजपूत की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कमालिया खद्दर के कपड़े की वजह से पूरी दुनिया में अपना मुकाम रखता है। खद्दर का कपड़ा जो सदियों से यहाँ पर तैयार किया जाता है और इस शहर की सकाफत की इलामत है। आज भी शहर में छोटी बड़ी सनतें कायम है जहाँ कारीगर हाथ से खद्दर का कपड़ा तैयार कर रहे हैं, लेकिन दौर जदीद के साथ ही ये अमल मशीनों पर मुंतकिल हो गया। इस कारोबार से हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। खद्दर की मुख्तलिफ इकसाम में गोली खद्दर, खड्डी खद्दर, सफीनी खद्दर जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। हर किस्म के दीदा जेब रंग के मलबूसात खवातीन और मर्द बहुत शौक से जेब तन करते हैं। यही नहीं बल्कि अंदरून और बैरून मुमालिक में भी बजरिया पार्सल भेजे जाते हैं। कमालिया का खद्दर अरसा 70-80 साल से मशहूर है। पहले ज़माने में खद्दर जो है हाथ खड्डी के ऊपर तैयार होता था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से खड्डी जो है वो पूरा नहीं कर सकती। हुकूमत को चाहिए कि खद्दर की इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि छोटे बड़े ताजरों को आलमी मंडियों तक रसाई हासिल हो। बढ़ती हुई बिजली और पेट्रोल की कीमतों के बायस खद्दर की इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस छोटे बड़े ताजरों को कारोबार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस अक्सर छोटे ताजर मुआशी मसाइल के बायस खद्दर का काम छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, हम बिल्कुल कंगाल होकर बैठे हैं। आप मार्केट चेक करें, इधर कोई भी कस्टमर नहीं है। पहले जो लोग अपने दोस्तों अहबाब को सूट बेचते थे, कमालिए के लोग, आजकल तो वो भी नहीं आ रहे। दूसरी जानिब साबिक MNA रियाज फतेहाना ने खद्दर की लड़खड़ाती हुई इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए पंजाब संभाल इंडस्ट्री से हैंडीक्राफ्ट का मंसूबा पास करवा लिया है। इस मंसूबे के क़याम के बाद तलबा व तालबात को खद्दर और दीगर हुनर में खसूसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और बाकायदा नुमाइश लगाई जाएगी। खद्दर कमालिया शहर की पहचान है। इसकी सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने के लिए हुकूमत खसूसी इक़दाम कर रही है, जिससे न सिर्फ रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे बल्कि कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। खद्दर का कपड़ा कमालिया की पहचान है। लोग अपने प्यारों को तोहफ़े के तौर पर बेचते हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। दीना से डोमेली और मुख्तलिफ देहातों के रूट पर चलने वाली रिवायती बसों का मुकाबला है। हुस्न दुल्हन की तरह सजी और चमचमाती हुई मुसाफिर बसों की सड़कों पर कैट वॉक, मुख्तलिफ धुनों पर बनाए गए हॉर्न ने समा बांध दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। दीना से डोमेली और मुख्तलिफ देहातों के रूट पर चलने वाली रिवायती बसों के शौकीन ड्राइवरों ने सजाया अनोखा बसों का मेला, जिसमें इलाका भर की रिवायती मुसाफिर बसों को दुल्हन की तरह सजाया गया। इन बसों को मकामी ज़बान में रॉकेट बस कहा जाता है, जो पुराने मॉडल के बेडफोर्ड ट्रक से बनाई जाती हैं। इन बसों को दुल्हन से भी ज्यादा बनाव श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि इन बसों को बनाने में इतना खर्च नहीं होता जितना इनके श्रृंगार पर अखराजात किए जाते हैं। सजी संवरी और चिमचमाती बसों को इलाका की सड़कों पर कैट वॉक करवाई गई। नित नए म्यूजिक पर मबनी प्रेशन हारन बजाकर समा बांध दिया। बसों पर मुख्तलिफ रंगों की लाइटिंग ने इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। ढोल की थाप पर रक्स करते ड्राइवरों ने नोट भी निछावर किए। इलाका के लोगों की बड़ी तादाद इन बसों को देखने उमड़ आई। आज के दौर में जहां मॉडर्न मुसाफिर बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं, वहीं चंद इलाकों में शौकीन हजरात ने इन रॉकेट बसों को अपनी असल हालत में रखे हुए सकाफती रवायत को जिंदा रखा हुआ है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। सवात के शाही बाग के जन्नत नज़ीर मनाजिर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। शाही बाग खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए।
یہ دل فریب اور خوبصورت مناظر ہے وادی کالام سے 30 کلومیٹر دور شاہی باغ کے۔ شاہی باغ کے چاروں طرف پلک پوش پہاڑ سینہ تان کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے برغزار اور نیلے رنگ کا پانی رہی سہی کسر پوری کر دیتا ہے۔ شاہی باغ سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ وادی اتروڑ سے آگے 14 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ ادھر ہم آئے ہیں، باقی ویوز کی بات ہے تو ہم اس سے پہلے بہت سے کمراٹ کے علاقہ پر دیر کا جو ہے مری کالام مری اور گلیات وغیرہ ہو گئے، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، لیکن ادھر ہم جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو سب کے وہ کہتے ہیں نا منہ کھلے رہ گئے۔ پشاور سے آئے اور بہت خوبصورت جگہ ہے اور سارے فیملی کا جگہ ہے، اور میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ادھر آ جائے اور بہت اچھے نظارے ہیں۔ شاہی باغ گویا زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ سیاح یہاں کا وزٹ کرتے ہوئے راستے میں گھنے جنگلات، بلکھاتی ندی اور میٹھی پانی کے چشمے سے خوب لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ کمر مشانی میں مونسون بارشوں سے جہاں بڑے پیمانے پر تیار فصلوں کو تباہی کا سامنا ہوا، وہیں حال ہی میں بننے والا پل اور سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا، اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظہیر عباس خان۔ کمر مشانی کے نوائی علاقہ ناصر لنک روڈ پر تعمیر کیا جانے والا گھاڑو والا پل برساتی پانی سے ٹوٹ گیا، لیکن عرصہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود پل اور روڈ تعمیر نہ ہو سکا، جس سے مقامی لوگوں اور یہاں سے سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ایک بارش بھی برداشت نہیں کر سکا، بارش آئی ہے پانی نال سارا لڑ گیا۔ ساری افسرانہ بالا گزارش ہے کہ روڈ کو زیر تعمیر کی جائے۔ روڈ 2 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 6 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے بنا، لیکن صرف کچھ ماہ ہی چل سکا۔ روڈ کے دونوں شولڈر لال مٹی سے بنائے جو مونسون کا ایک بارش بھی برداشت نہیں کر سکی۔ شہریوں نے سچ نیوز کو بتایا کہ مریضوں بالخصوص حاملہ خواتین کو ہسپتال لے جانے، سکول آنے اور جانے والے طلباء و طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اقوام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر عباس خان، سچ نیوز، کمر مشانی، میاں والی۔ 24 ستمبر 2019 کو آنے والے زلزلے کو 4 سال بیت گئے۔ گورنمنٹ گرلز اسکول کلیال کی عمارت کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا، دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، اساتذہ اور طلباء اذیت کا شکار ہیں۔ محمد صغیر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ میرپور آزاد کشمیر میں 24 ستمبر 2019 کو آنے والے زلزلے کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ زلزلے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی بلڈنگ جو ڈیمیج ہو گئی تھی ابھی تک اس پر کام نہیں ہو سکا۔ 800 سے زائد طلبات کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ بلڈنگ کا ہے۔ 24 ستمبر 2019 میں جو زلزلہ آیا اس بلڈنگ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا، اور جتنے سرویز ہوئے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ بلڈنگ استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹینٹس پرووائڈ کیے گئے لیکن وہ بھی اب ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ ہمارے ادھر بلڈنگ بہت زیادہ ڈیمیج ہے اور ہمیں پڑھتے وقت بھی ڈر لگتا ہے، اللہ اللہ کر کے پڑھتے ہیں کہ کہیں یہ بلڈنگز ہمارے اوپر ہی نہ گر جائیں، لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری بلڈنگز کو رینوویٹ کروایا جائے۔ یہاں کی بلڈنگ بہت زیادہ ڈیمیج ہیں اور ہمیں یہاں بیٹھنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کلاسز کے کمرے میں جگہ جگہ کریک پڑنے سے اسٹاف اور طلبات ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ادارے کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ زلزلے کے وقت ہمیں جو ٹینٹ دیے گئے تھے کلاسز کے لیے وہ بھی پھٹ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر وقت یہ پریشانی ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ اسکول کی طلبات کا کہنا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اسکول کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں کلاس کے کمرے کی چھت ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے۔ جبکہ اسکول کی طلبات کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری اسکول کی بلڈنگ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے تاکہ ہم اپنی تعلیم کو بلا خوف و خطر جاری رکھ سکیں۔ پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر اور انچارج نمائندگان سچ نیوز مہر حمید انور میاں چنو تحصیل بار پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر نے تحصیل بار کے صدر رانا عبد الرحمان کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی اور رانا عبد الرحمان کی خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں چنو بار کے مسائل کے حل کے لیے رانا عبد الرحمان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر نے رانا عبد الرحمان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ گلگت میں نیٹکو ملازمین نے کام چھوڑ ہڑتال کر دی ہے۔ نیٹکو کے 1000 کے قریب ملازمین 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین نے ٹرانسپورٹ سروس بند کر دی ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے احتجاج جاری رہے گا۔
वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान का कौमी ट्रांसपोर्ट का इदारा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुलाजमीन सरापा एहतजाज, 3 माह से तनख्वाह न मिली, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, मुलाजमीन डट गए। हम नेटको मुलाजमीन पिछले 3 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। 35% दिहाड़ी जो वफाक से मिली है सब मुलाजमीन ने ली है, हमें 35% नहीं दिया जा रहा है, हमें 35% से महरूम किया जा रहा है। 3 दफ़ा हमने साहब के साथ मुज़ाकरात करके उसके साथ जो मामला थे सब कुछ आगे रखा। आज सुबह हमारे लास्ट डेट था, वहीं पे हम दफ्तर 12:30-1 बजे तक हमारा MD साहब कुर्सी भी नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान का कौमी ट्रांसपोर्ट इदारा नेटको में गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह न मिलने और DRA समेत दीगर इशूज हल न होने पर मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि घर में फाके पड़े हैं, MD की बारहा दफा यकीन दहानी के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। मुलाजमीन ने बस टर्मिनल पर एहतजाज करते हुए तमाम ट्रांसपोर्ट को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिर ख्वार होने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि हम सुबह से इस्लामाबाद जाने के लिए आए हैं, मगर एहतजाज की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। आला हुक्काम नोटिस ले और अवामी मसाइल को हल करें। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। कबायली अजला की तारीख में पहली बार खातून SHO तैनात कर दी गई। कबायली अजला में खवातीन पुलिस अफसर की तैनाती से कबायली खवातीन को अपने मसाइल बेहतर तरीके से बयान करने में आसानी होगी। जावेद मंगश की रिपोर्ट देखिए। चकवाल के मॉडल कस्बा मुरीद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से चकवाल के मॉडल कस्बा मुरीद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और लेडी डॉक्टर ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। DHO डॉक्टर अंजुम कदीर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर चकवाल के दूर दराज इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है ना लेडी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और साथ हम जो है ना फ्री शुगर का भी चेकअप कर रहे हैं। जबकि फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों का कहना था कि इस तरह के कैंप लगने से गरीब आदमी को भी इलाज कराने की सहूलत मिल जाती है और इस तरह के कैंप वक्तन फवक्तन लगते रहने चाहिए। इस तरह के कैंप जो हैं वो फलाई अदारे या इनके साथ मुंसलिक जो लोग हैं या सरकारी अदारे हैं, लोकली सतह पे इनको लोगों को सहूलियात दें। बिलाशुबा डिप्टी कमिश्नर चकवाल का फ्री मेडिकल कैंप लगाना गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस तरह के कैंप दूर दराज के इलाकों में लगें तो गरीब आदमी को भी अपना इलाज कराने में आसानी होगी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।